other students who have joined this meeting. So first of all, I'm again welcoming you for this in this session. And now for proceeding further, I would like to invite Director of our Institute, Professor B.M. Dikshit sir, for his opening remark for this session, so that we can have an idea what we have in mind in planning such sessions which are very relevant and important for students. So please, sir. Thank you, Lalit, for inviting me, and I'm really very thankful to the department, the Faculty of Physical Sciences, who have started this webinar series. As usual, leaders have to take up the thing from their own, and RG has taken up that responsibility. Our Dean of Physical Sciences, he said that let the ball rolling, because breaking the inertia is the biggest issue as far as physics is concerned, and as far as our mental situations are also concerned. Most of the time we think that we are bogged down by many other issues. So I'm really very thankful for Professor Ram Gopal, who agrees to come up with, and that too in a very surprising way. He picked up a topic which should belongs to me, actually, in one sense, that since I also belong to a community of nuclear physics, but RG's effort of taking up this topic, and I'm quite sure that whatever we have listened from him in our past, he gives us some really an insightful discussion is there. So I'm very excited to see that he is very polite in one sense. He's very polite, but very strong from within in terms of his commitment towards the physical science. I'm welcoming Dr. RG to please come up and give us an idea on modern particle accelerators. And I am also very keen to listen that what the way your presentation skills are really fantastic. So I'm very much keen to see you, that how you are developing this whole idea. And I'm requesting all my students and all my colleagues that get benefited by these type of events, by these type of discussions. Thank you for your kind words. Let me share my screen to show the presentation. ललित, क्या आप पीपीटी देख पा रहे हो? Yes sir, please put it on full screen mode. Yeah sir, thank you. That's okay good. Okay, continue sir. Thank you sir, thank you Dikshit sir for such encouraging words. और हमेशा सर आपका एक मोटिवेशन रहा है to put the challenges and to complete it in a best possible जो effort कर सकते हैं उसमें. So let me introduce this topic, that is the modern particle accelerators. And इसके साथ मेरा जुड़ाव थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि इसका एक सेक्शन होता है जो कि लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शन है. उस पे मुझे मौका मिला था अपनी सुपरवाइजर जो हमारी हैं प्रोफेसर पल्लवी झा मैम, उनके साथ काम करने का. सो दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. रिसर्च में इसको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था. सो आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक इन द बेस्ट पॉसिबल सिंपल वे. ये मेरा प्रयास रहेगा, देखते हैं इसमें आप लोग बताइएगा कहाँ तक मुझे सफलता मिली है.
So the first question is what are particle accelerators? ये accelerators क्या हैं, इनका किस तरह की चीजें हैं, क्या हैं ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही बड़ी मशीन है। अभी जो प्रेजेंट स्टेट में जिसकी हम बात करें तो दीज आर दी मेगा मशीन्स आप कह सकते हो, इसमें हम पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल को, जैसे हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयंस हैं, इनको हम एक्सेलरेट कराते हैं। तो जैसे एक्सेलरेटर्स हैं तो इनका काम है एक्सेलरेट कराना, मतलब इंक्रीज होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये शुरुआत में लो वेलोसिटी से पार्टिकल को शुरू करते हैं एंड देन हायर स्पीड, हायर एनर्जी पर उनको ट्रांसफर करते हैं। तो ना केवल एक्सेलरेटर्स का काम पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है, बल्कि उनको एक बीम के फॉर्म में, एक वेल कन्फाइंड, एक शार्प बीम के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है, ताकि वो हमारे पास एक फोकस्ड, एक तरह का फोकस्ड इंस्ट्रूमेंट का आप कह सकते हैं, एक फोकस्ड ऑब्जेक्ट बन जाए, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके उसके साथ उसकी स्कैटरिंग या जो भी एनालिसिस, कोलिजन देखना है वो हम कर लें। तो एक्सेलरेटर्स प्रेजेंट डेज में मशीन्स हैं, मेगा मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती हैं एक्सेलरेट कराने के लिए पार्टिकल्स को, और उनको बीम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप एक एनिमेशन देख रहे हो, इसमें एक रेड डॉट जो दिख रहा है, दिस इज अ पार्टिकल, और उसके सामने जो सिलिंड्रिकल सेक्शंस हैं, ये एक पीरियोडिक तरीके से प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस पोटेंशियल इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेटिंग किक आप कह सकते हो हर सिलेंडर से गुजरते हुए उस पार्टिकल को मिलता है, और एक लीनियर फॉर्म में एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सेलरेट होता है। दिस इज अ वेरी बेसिक आइडिया ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर, यू कैन से। ओके, सो इन एक्सेलरेटर्स का हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, क्या है इनके एप्लीकेशंस जो कि आज की डेट में हम जिनको देख सकते हैं। तो जैसे एक एप्लीकेशन इसमें ऐसा है कि जब आप इन चार्ज पार्टिकल, खासतौर पे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसको जब आप किसी स्टेज पर बेंड करते हो, मतलब जब ये एक्सेलरेट कर रहे हो आप इनको बेंड करते हो, तो उस समय इनकी एक पार्ट ऑफ एनर्जी जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वहां से एमिट आउट होती है, जिसको हम सिंक्रोट्रॉनस रेडिएशन कहते हैं। तो एक सिंक्रोट्रॉन टाइप ऑफ लाइट सोर्सेस भी हैं, और जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स में आज की डेट में यूज कर रहे हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स में इसको यूज कर रहे हैं। आप एक मॉडल जो यहाँ रोटेट होता हुआ देख रहे हो, ये एक राइबोसोम है, एक राइबोसोम है जो कि मॉडर्न बायोलॉजी, सिस्टमैटिक बायोलॉजी में इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको, इसकी स्टडी को है, और 2009 में नोबेल केमिस्ट्री का इस राइबोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए दिया गया था। तो उन लोगों ने इस स्ट्रक्चर को पता कराने के लिए एक्सरे बेस्ड क्रिस्टलोग्राफी का यूज किया था, और आज की डेट में धीरे धीरे अब वो एक्सरे बेस्ड क्रिस्टलोग्राफी सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन बेस्ड क्रिस्टलोग्राफी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो एक ये भी इसका एक एप्लीकेशन है कि हम एक्सेलरेटर से सिंक्रोट्रॉनस रेडिएशन निकालते हैं और देन उसकी हम क्रिस्टलोग्राफी में स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उसमें से जो बहुत ही ऐसे एप्लीकेशन जिन्होंने एकदम से हमारा ध्यान खींचा है, पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, और वो है कि एक्सेलरेटर्स, स्मॉल पार्टिकल एक्सेलरेटर, स्मॉल मतलब साइज वाइज हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम स्मॉल साइज के एक्सेलरेटर्स बना ले जाएं, एफिशिएंट एक्सेलरेटर्स बना ले जाएं, तो हेड्रॉन थेरेपी या प्रोटॉन थेरेपी जिसको हम कहते हैं, जो कैंसर ट्रीटमेंट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जा रहा है, उसको हम रियलाइजेशन में ला सकते हैं, उसको हम अवेलेबल करा सकते हैं आम लोगों को, मतलब जिसको बहुत ज्यादा, जो उस तरह के जगहों पे नहीं जा सकते, उतनी हाई फैसिलिटी में नहीं जा सकते। देखिए नीचे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या होता है कि कन्वेंशनली हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर रहे हैं, तो हम पेशेंट को एक्सरे दे रहे हैं। एक्सरे के साथ क्या होता है कि उसकी जो अब्जॉर्प्शन रेट है हमारी बॉडी में, वो कुछ अलग तरह की होती है। तो जिस हिस्से में ट्यूमर है, आप जहां ये ट्यूमर वाला हिस्सा देख रहे हो, तो जिस हिस्से में ट्यूमर है वहां तक जब तक ये एक्सरे रेडिएशन पहुंचता है, तब तक इसका जो रेडिएशन डोज है वो रिड्यूस कर चुका होता है। मतलब जितनी एक्सरे रेडिएशन हमें ट्यूमर तक पहुंचानी है, वहां तक की रेडिएशन हम उतनी इफेक्टिवली नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल करें प्रोटॉन थेरेपी में, तो हम टारगेटेड तरीके से उस ट्यूमर को
एक इनफ अमाउंट की डोज, रेडिएशन डोज पहुंचा सकते हैं, एक सर्टेन डेप्थ में जाकर के हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ट्यूमर को टारगेट करना ज्यादा आसान है, ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं एफिशिएंटली हम उसको टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन थेरेपी। एक और चीज है इसमें कि जैसे रेडिएशन थेरेपी जब होती है तो जो डीएनए स्ट्रक्चर ट्यूमर में जो ब्रेक करते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं कई बार, मतलब वो ट्यूमर अपने आप को फिर से रिगेन कर लेता है, रिपेयर कर लेता है अपने उस डीएनए डैमेज को। लेकिन अगर हम प्रोटॉन थेरेपी को यूज करते हैं तो इसमें इसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जहां पर कि वो ट्यूमर फिर से अपने डीएनए ब्रेकेज को रिपेयर कर ले। तो एक तरह से ये एक तरह का परमानेंट ट्रीटमेंट जैसा हो जाता है प्रोटॉन थेरेपी इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। वी विल डिस्कस दिस इन लिटिल बिट डिटेल आगे की स्लाइड्स में। बाकी के और एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे आप न्यूक्लियर मेडिसिन होता है, एक ब्रांच है मेडिसिन की न्यूक्लियर मेडिसिन, तो उसके लिए रेडियो आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करना है, डायग्नोस्टिक के लिए यूज करना है। सेमीकंडक्टर्स में एपिटेक्सियल ग्रोथ के दौरान अगर हमें आयन इम्प्लांट करने हैं तो उसके लिए भी हम एक्सेलरेटर्स का यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर्स हम इससे बना रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं जिससे कि हम रेडियो कार्बन आइसोटोप का मास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। शुरुआत के दिनों में जब एक्सेलरेटर्स, लीनियर एक्सेलरेटर्स, साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, ये सब हम लोग जब बना रहे थे तो हमारा मेन मकसद था कि एटम को ब्रेक करना है, एटम के अंदर के न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, उसके अंदर क्या है इसको देखना है। तो उस जमाने में एक्सेलरेटर को एटम स्मैशर कहा जाता था, एटम को जो तोड़ के उसके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख रहा है। तो न्यूक्लियर साइंस से लेकर मेडिकल साइंस से लेकर के मटेरियल साइंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सभी जगहों पर हम एक्सेलरेटर्स के कुछ कुछ पार्ट्स को देखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। मॉडर्न समय में एक एक्सेलरेटर है जिसका काफी समाचारों में रहा है, न्यूज में उसको काफी चर्चा उसको मिली है, जहां हम एक्सेलरेटर को एज अ कोलाइडर इस्तेमाल करते हैं। कोलाइडर में क्या होता है कि हम एक्सेलरेटर्स में बीम ऑफ पार्टिकल की जो बीम कन्वर्ट करते हैं और देन उन पार्टिकल्स को कोलाइड कराते हैं विद द मोस्ट प्रिसिशन जितना हम कर सकते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब ये कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन के थ्रू फिर हमें नई नई तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक आज के समय में सुना हुआ नाम है जो कि है एक एक्सेलरेटर ही। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर है हमारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अगर इसकी कुछ डाटा को आप देखें तो तीन देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें फ्रांस की सीमाओं, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, इन सब के नीचे से होकर की पूरी लेबोरेटरी बनी हुई है। करीब करीब जमीन से 574 फीट नीचे फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर नियर जेनेवा ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है और 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में ये काम कर रही है ये पूरी मशीन। इसके डाटा आप बड़े इंप्रेसिव डाटा हैं इसके कि 27 किलोमीटर के सर्कमफेरेंस में बना है, 1 पेटाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से इसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा क्रिएट हो रहे हैं, बिलियंस अमाउंट में कोलिजन पर सेकेंड हम इसमें देखते हैं और इसकी जो हीट जनरेशन की कैपेसिटी है दैट इज 100 केल्विन टाइम्स हॉटर देन द सन। और सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल चूंकि इसके अंदर हो रहा है इसीलिए -271 डिग्री सेंटीग्रेड का इसके उन पैसेजेस में टेम्परेचर क्रिएट किया गया है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो करीब 13 बिलियन यूएस डॉलर इसमें अभी तक खर्च हो चुके हैं जब से बन रहा है, जब से इसका शुरुआत हुआ है और जो भी ऑपरेट हुआ है। तो 13 बिलियन अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो हम करीब 980 करोड़ 980 अरब डॉलर रुपए 980 अरब रुपए करीब हम इसमें खर्च कर चुके हैं। और अभी भी जब ये फंक्शन में करता है, ये पूरी जो मशीन जो फंक्शन करती है तो $1 बिलियन पर ईयर के खर्च से ये पूरा ऑपरेशन होता है। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इसके यूज हैं जो देखने को मिल रहे हैं। नए नए एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में, पुरानी जो थ्योरी हैं जिनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है पार्टिकल फिजिक्स में, स्टैंडर्ड मॉडल में, उनको भी चेक करने के लिए भी ये मशीन एक अपना पार्ट प्ले कर रही है। बट स्टिल इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चर आप मान सकते हो, बहुत ही कॉस्टली स्ट्रक्चर है, एक्सेलरेटर है ये एक, लेकिन इट्स अ वेरी कॉस्टली एक्सेलरेटर।
अगर हम बात कर रहे हैं कि हम कैंसर ट्रीटमेंट या मेडिसिन में एक्सेलरेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इतने अरबों खरबों रुपए का स्ट्रक्चर एक बार बन जाए दुनिया में यही बहुत है। उसको अफोर्ड करना एक बहुत ही कॉस्टली, एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है। नाउ देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी लैंडमार्क पेपर जिसने स्मॉल साइज पार्टिकल एक्सेलरेटर की इस पूरी फील्ड को क्रिएट किया था, एंड दिस वाज रिटन बाय ताजिमा एंड डाउसन, जो कि यूसीएलए के थे। डाउसन वाज अ प्रोफेसर एंड ताजिमा वाज हिज स्टूडेंट। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको कि आज हम लेजर एक्सेलरेटर या लेजर वेक फील्ड एक्सेलरेटर कहते हैं। एंड दिस वाज द पेपर। इट वाज जस्ट अ प्योरली थ्योरेटिकल पेपर। ये पूरी तरह से थ्योरी थी, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, जस्ट एक आइडिया था, उससे जुड़े हुए सिमुलेशन थे, कुछ डाटा था, बहुत ही इंप्रेसिव डाटा था। तो जब ये आइडिया आया तो देन उन्हीं लोगों ने, उसी यूनिवर्सिटी ने इसको एक्सपेरिमेंटली रियलाइज करने की बात शुरू की। और इस पूरे आइडिया में क्या था कि हम प्लाज्मा लेंगे। अब प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा को आप ऐसे समझ लो जैसे अगर आपके पास आइस है, आप बर्फ को हीट दोगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट दोगे तो गैस बनेगी। जब गैस को हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वहां मल्टीपल आयनाइजेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उस गैस जिसको हम हीट दे रहे हैं उसको कन्फाइन रखें तो थोड़े समय बाद उस हीट की वजह से वहां सिर्फ न्यूक्लियस होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट को छोड़ करके फ्री हो चुके होंगे। तो वो जो कन्फाइंड स्टेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा स्टेट। तो आप इसको समझ लें कि हाईली आयनाइज्ड स्टेट होती है किसी मैटर की, जिसको कि हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो जब हम उस प्लाज्मा स्टेट में लेजर को फेंकेंगे, हाई इंटेंस बीम जो होती है लेजर की उसको फेंकेंगे, उसको शूट करेंगे, तो एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा उस पूरे प्लाज्मा में, और उसी डिस्टर्बेंस से हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं। तो दिस वाज द थ्योरेटिकल आइडिया। इन 1984 नेचर में एक आर्टिकल पब्लिश होता है, डाउसन की टीम ही करती, जिसको कि चंद्रशेखर जोशी लीड करते हैं। तो चंद्रशेखर जोशी, वॉरेन मूरी, टी कॉस्टलस और डाउसन, ये चार लोग मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जहां पहली बार इस थ्योरेटिकल आइडिया को एक्सपेरिमेंटल रियलाइजेशन में होता हुआ लोग देखते हैं कि हाँ सच में वो आइडिया सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है, एक्सपेरिमेंटली भी हम प्लाज्मा डेंसिटी वेव क्रिएट कर सकते हैं लेजर के थ्रू, और उससे हम एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकते हैं। और सबसे खास बात इस रिसर्च की, इस एक्सपेरिमेंट की ये थी कि इस एक्सेलरेशन मैकेनिज्म के लिए जो जगह चाहिए थी वो कुछ सेंटीमीटर की ही थी। तो जहां हमारे पास कई मीटर, कई किलोमीटर लंबे एक्सेलरेटर्स थे जो कि उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्रिएट करते थे, यहां इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ सेंटीमीटर में वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करके दिखाया था। तो उस समय के न्यूज़पेपर्स ने इस पूरी रिसर्च को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, और एक नया नाम, मीडिया के दिया हुआ नाम आया, जो कि साइंस ने एक्सेप्ट भी कर लिया, टेबल टॉप एक्सेलरेटर्स। मतलब ऐसे एक्सेलरेटर्स जो एक नॉर्मल टेबल पर क्रिएट किए जा सकें और जिनमें पोटेंशियल उतना ही हो जितना कि बड़े बड़े लीनियर एक्सेलरेटर्स में होता है। So let me explain the basic idea of this wake field accelerator या laser plasma accelerator। आप देख रहे हो कि एक पानी में एक बोट जा रही है और इस बोट के पीछे आप पानी में लहरें देख रहे हो। तो ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, आप लोग देख सकते हैं कि जब हम बहुत तेजी से बोट को पानी में लेके जाएंगे, अब बोट कितनी भारी है, कितनी वेलोसिटी चल रही, काफी सारे फैक्टर वहां पर हैं, तो उसके पीछे लहरें बनती हैं जिनको हम वेग कहते हैं। ये जो वाटर वेव्स क्रिएट होती हैं बोट के चलने से, उसको हम वेग कहते हैं, बिहाइंड द बोट जो वेग है। जैसे आप देख रहे हो एक बोट चल रही है, उसके पीछे पानी में उथल पुथल मची है जो कि एक वेग है। अब इस तरह की जो पानी की लहरें होती हैं, जैसे समुद्र में पानी की लहरें उठती हैं, तो आप कुछ सर्फर्स को देखते हो जो उन पानी की लहरों को बहुत ही तेजी से कलाबाजियां दिखाते हैं। जैसे आप देखिए रिसेंटली ओलंपिक चल रहे हैं, जापान की टीम का एक फुटेज है ये, जहां पर आप देख रहे हो कि एक सर्फर है और वो पानी समुद्र की लहरों पर सर्फिंग कर रहा है। अब जो सर्फर बोट होता है इसमें कोई भी इंजन नहीं लगा होता है। ये जो प्लेयर होता है, ये इसकी स्किल है कि कैसे उठती हुई लहरों पर
ये अपने आप को बैलेंस करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है और फिर उतरती हुई लहरों पर ये तेजी से फिसलता हुआ काइनेटिक एनर्जी को, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता है और फिर अगली लहर पर ये मूव करता है। बिल्कुल यही मैकेनिज्म यहां पर भी आप समझेंगे कि इसी तरह से जो प्लाज्मा के अंदर लहरें उठ रही थी, उन लहरों पर इलेक्ट्रॉन सर्फिंग करते हैं और अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हुए एक्सेलरेट होते हैं। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस वेक फील्ड एक्सेलरेटर। तो ये आप देखिए, ये एक सिमुलेशन का डायग्राम है जहां पर जो रेड कलर का आप देख रहे हो लेजर पल्स है और उसके पीछे आप जो ये ब्लू कलर की वेव्स देख रहे हो, दीज आर दी वेक। प्लाज्मा के अंदर जो ये वेक क्रिएट हो रही हैं, तो इनको हम वेक फील्ड कहते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा के अंदर एक तरह के पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं, तो इसको वेक फील्ड कहा जाता है। तो वेक इन प्लाज्मा बाय इंटेंस लेजर। दिस इज, ये सारा आइडिया एक जगह पर अगर आप एक स्लाइड में देखो तो आप एक जगह देख रहे हो कि जहां ये वेक बन रही हैं, ये जो रेड कलर का स्पॉट है ये लेजर है जो कि तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसके पीछे जो वेव क्रिएट हो रही हैं उसमें उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, उसी प्लाज्मा के जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन बंच के फॉर्म में आगे मूव कर रहे हैं। और ये वो सर्फिंग की सिमिलरिटी है जहां पर एक प्लेयर, एक सर्फर, उस उतरती हुई चढ़ती हुई जो पानी की लहरें हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर लोअर साइड में आप देखो ये कि किस तरह से वेग बन रही हैं लेजर पल्स के जाने के बाद, और जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो उस वेग की ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक मोनो एनर्जेटिक बीम के फॉर्म में, फोकस्ड बीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखने में, सुनने में आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन किस तरह से लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंटली रियलाइज किया, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क जो आज भी लोग उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ सिमुलेशन स्टडी जहां पर आप कुछ हद तक रियलाइज कर सकते हो। एक सिमुलेशन स्टडी है कि किस तरह से एक प्लाज्मा में पल्स शूट की जाती है, लेजर पल्स थ्रो की जाती है, वेव क्रिएट होती हैं, और आप देखेंगे इसमें एक बहुत ही शार्प तरीके से कुछ बीम इंजेक्ट होती है। तो जो आप ये अप साइड में बीम जाती देख रहे हो, ये वो एक्सेलरेटेड बीम है जो कि इस वेग से बाहर निकल रही है। तो दिस इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, जो पूरा वेग फील्ड एक्सेलरेशन का प्रोसेस था। अब देखिए अब क्या हुआ कि आज की डेट में हमारे पास अगर एक आरएफ कैविटी, अगर हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी कैविटी जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है एक्सेलरेशन कराने का, उसकी बात करें तो 1 मीटर की ट्यूब होती है, तो उसमें 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक तरह के एनर्जी गेन पाते हैं पार्टिकल की। लेकिन हमारे पास लेजर प्लाज्मा एक्सेलरेटर में सिर्फ 100 माइक्रोमीटर, तो आप सोच सकते हो आरएफ कैविटी 1 मीटर एंड द प्लाज्मा एक्सेलरेटर 100 माइक्रोमीटर, और 100 माइक्रोमीटर में जो हमें एनर्जी का गेन मिल रहा है वो 30 MeV है। तो 1 मीटर में ट्रेडिशनल तरीके से 50 MeV के गेन पा रहे हैं, और यहाँ 100 माइक्रोमीटर से हम सिर्फ, मतलब 100 माइक्रोमीटर से हम 30 MeV का गेन मिल रहा है। तो अगर ये डाटा कंपेयर करो तो काफी इंप्रेसिव डाटा है कि हमने काफी छोटे साइज में एक काफी ज्यादा एनर्जी गेन पा लिया है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द टेबल-टॉप एक्सेलरेटर। दिस इज अनदर डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन प्रोसेस। तो आप देख रहे हो कि एक लेजर बीम जा रही है, ये जो रेड पोर्शन है एक चाहे आप इलेक्ट्रॉन की पल्स भेजो या लेजर पल्स भेजो, आप यहां से भेज रहे हो और उसके पीछे वेग क्रिएट हो रही है, और जो प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तेजी से इस वेग के ट्रैप में आते हैं और एक एक्सेलरेशन प्रोसेस को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर लिथियम पैलेट्स हैं जिनको कि हीट करते हैं, तो इनसे प्लाज्मा स्टेट क्रिएट होता है, और उस प्लाज्मा स्टेट में जब आप लेजर शूट करते हो, लेजर को जब उसमें इंजेक्ट करते हो, तो वहां पर वेग क्रिएट होता है और उस वेग में इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं। तो एक्सेलरेटर्स ने दिखाया कि हम 4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी भी पा सकते हैं 10 सेंटीमीटर के छोटे से साइज में। तो ये अभी मॉडर्न डेज 2014 के ये सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। दिस इज अनदर वेरी सिस्टमैटिक डायग्राम जहां पर आप देख रहे हो कि जब एक ड्राइव पल्स, एक लेजर पल्स जब जा रही है तो अपने पीछे जो वेग क्रिएट कर रही है, उस वेग में जो डॉट देख रहे हो, दिस डॉट आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं और बैक साइड ऑफ द ये जो पूरा वेक है इसमें इंजेक्ट हो जाते हैं, और जैसे यहाँ ट्रैप होते हैं वो फिर उस ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म है कि लेजर जाएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, वेक क्रिएट करेगा, वेक अगल बगल के इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप करेगा और फिर उनको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंजेक्ट करेगा, और स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता जाएगा। दिस इज द माइक्रो एनालिसिस ऑफ द होल मैकेनिज्म ऑफ द वेक फील्ड एक्सेलरेशन। ये जो पूरा इतना अट्रैक्टिव और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरी ब्रांच है 1980 में शुरू हुई थ्योरेटिकली, 1984 में इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा गया। तो हाल फिलहाल इसको हम कह सकते हैं कि 40 साल लगभग इस पूरे आइडिया को, थ्योरेटिकल आइडिया को डेवलप मतलब ओरिजिनेट हुए हो चुके हैं। 40 साल एक बहुत बड़ा समय नहीं होता है कई बार साइंस में नई थ्योरी और नई टेक्निक को डेवलप होने के लिए, लेकिन फिर भी काफी तेजी से ये पूरी फील्ड ग्रो हुई है। नेचर ने 2004 में पूरा अपना एक इशू इसी को डेडिकेट किया था, जहां उन्होंने एक ऐसे कॉम्पैक्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के बारे में लोगों से आर्टिकल्स इसमें इकट्ठा किए थे। दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस इशू नेचर का, जिसमें ड्रीम बीम के बारे में उन्होंने बताया था। और लॉरेंस लिवरमोर लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट, स्लैक है, जर्मनी के इंस्टीट्यूट्स हैं, नेवल रिसर्च एकेडमी है, इवन इंडिया में जो IPR है, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सभी ऐसे संस्थान है जो कुछ फेमस जगहें हैं जहां पर कि काम हो रहा है, इस पे लोग इसको स्टडी कर रहे हैं और इस पूरी टेक्नोलॉजी को एक इफेक्टिव तरीके से ग्रो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दिस इज अनदर सिमुलेशन स्टडी, किस तरह से और डीप में आप देख सकते हो किस तरह से एक लेजर पल्स, जो ऑरेंज कलर की लेजर पल्स से प्लाज्मा से मूव कर रही है, और उसके पीछे ये जो स्कैटर्ड येलो ब्लू डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है, और आप देख रहे हो एक कोनिक सेक्शन जैसा बन रहा है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि अल्टीमेटली इस वेक में ट्रैप हो चुके हैं। तो ये पूरा स्टेज वाइज दिखा रहा है किस तरह से लेजर पल्स मूव कर रही है और किस तरह से उसके पीछे इलेक्ट्रॉन उसके वेग में ट्रैप होते हैं और फिर वो एक्सेलरेट होते हुए चले जाते हैं। अब फिर से हम आते हैं एप्लीकेशन पर। तो आप देख रहे हो कि हमने मिलीमीटर, माइक्रोमीटर साइज में और सेंटीमीटर स्केल पर पार्टिकल को एक्सेलरेट करना सीख लिया। तो इलेक्ट्रॉनों के एक्सेलरेशन के साथ अब प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए प्रयास शुरू हुए, ताकि हम वो जो प्रोटॉन थेरेपी के लिए टेबल टॉप एक्सेलरेटर की बात कर रहे हैं उनको डेवलप कर सकें। तो 2014 का एक IOP पब्लिशिंग है ये, और अगर बात करें तो जितने लोगों ने इसमें आप ये नाम देख रहे हो, इस सब के सब इस फील्ड के बड़े नाम हैं। मतलब एक अम्ब्रेला के अंदर सर ने एक अवेक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, और उसके अंदर जितने भी 2014 में उपलब्ध बड़े वैज्ञानिक थे, जो बड़े लोग जो इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो सब के सब इस पर्टिकुलर एक पेपर में इकट्ठा हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें उन्होंने क्या किया, एक प्रोटॉन ड्रिवन प्लाज्मा वेक फील्ड एक्सेलरेशन का उन्होंने पूरा एक डेवलप किया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और उसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव रहे। तो ये उसका एक आइडिया है कि किस तरह से प्रोटॉन बंच को उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन और लेजर के थ्रू एक्सेलरेट कराया और वेक क्रिएट की, और उस वेक में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अब वो प्रोटॉन को भी एक्सेलरेट करा पा रहे थे। तो मिलीमीटर साइज या 10 सेंटीमीटर कह लीजिए कि स्टैंडर्ड स्केल जो मान के चलते हैं, उस सेंटीमीटर स्केल साइज में GeV रेंज में, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो रेंज है उसको वो लोग पा रहे हैं, और ये वो रेंज है जिसका कि इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपनी थेरेपी के अंदर। सो ये एक प्रॉमिसिंग आप कह सकते हो रिजल्ट हैं, जो आने वाले समय में हो सकता है कुछ समय लगे इनको पूरी तरह से डेवलप होकर के कॉमन लाइफ में आने में, लेकिन ये एक ऐसी होप है जो कि भविष्य में दिख रही है, जिसके थ्रू इस ट्रीटमेंट को और अच्छे से किया जा सकता है। दिस इज अनदर आर्टिकल रिजल्ट्स हैं नेचर के, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम रेडिएशन, कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करें, तो जो एक्सरेज हैं वो सिर्फ उस प्रॉब्लमैटिक ट्यूमर को ही टारगेट नहीं करते, बल्कि उसके इर्द गिर्द की जो हेल्दी कोशिकाएं होती हैं, हेल्दी टिश्यूज होते हैं, उनको भी डैमेज कर देती हैं।
और उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटॉन थेरेपी की सबसे खास बात यह है कि प्रोटॉन बीम को एक ट्यून करके हम एक सर्टेन डेप्थ पर रोक सकते हैं। उसकी डेप्थ एक सर्टेन लेवल पे जा करके सिर्फ ट्यूमर को ही टारगेट करती है और मिनिमम हिस्से को वो अफेक्ट करती है जो कि हेल्दी है हिस्सा। तो टारगेटेड जो पोर्शन, जो टारगेटेड थेरेपी देने की जो बात है, वो इस प्रोटॉन थेरेपी का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, तो ये एक डाटा दिखाया गया है जहां की लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2002 से 2012 तक नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं उनकी संख्या बढ़ी है जो कि इस फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। और मे भी धीरे धीरे जैसे एक्सीलरेटर्स हमारे अच्छे होते जाएंगे, हॉस्पिटल्स उनको अफोर्ड कर पाएंगे, पेशेंट्स उन एक्सीलरेटर की थेरेपी को अफोर्ड कर पाएंगे और इस थेरेपी को और ज्यादा इफेक्टिव बन जाएंगी। ओके, सो दीज आर सम लास्ट स्लाइड्स, और इसमें मैं कुछ लोगों का नाम मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता था। एल्यूमिनाई है लखनऊ यूनिवर्सिटी के आशुतोष भैया, आशुतोष शर्मा, और इनके साथ में कुछ समय तक इनसे थोड़ा डिस्कशन रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। प्रेजेंटली ही इज इन हंगरी और वहाँ की एक बड़ी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। तो 2019 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें कि उन्होंने दिखाया है, उन्होंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स पता किए हैं जिससे प्रोटॉन को एक बंच फॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली पूरी स्टडी इस बारे में है कि कैसे प्रोटॉन बीम को एक्सेलरेट किया जाए और उनको बहुत ही फाइन फोकस्ड बीम के रूप में देखा जाए। तो जो आप ये राइट साइड में फिगर देख रहे हो जहां पे एक पीक दिख रहा है, तो ये एंगुलर डाइवर्जेंस का है। तो एंगुलर डाइवर्जेंस मिनिमाइज है, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोटॉन की एनर्जी जीवी रेंज में है और साथ ही साथ वो बहुत ही फाइन बीम के फॉर्म में कन्वर्ट है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस मेथड के थ्रू प्रोटॉन की माइक्रो बंचिंग पॉसिबल हो पाई है, यानी कि हम उनको एक्सेलरेट भी करा रहे हैं और उनको एक फाइन बीम के फॉर्म में हम उनको फोकस कर पा रहे हैं। ये उपलब्धि खास तौर पे जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ब्रेन की हर कोशिका बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो वहां पर मिनिमम डैमेज हेल्दी कोशिकाओं का न हो, इसलिए प्रोटॉन की थेरेपी के दौरान बीम को जितना फाइन हो सके उतना होना चाहिए। दिस इज अ वेरी नाइस स्टडी। दिस इज अनदर पेपर। इसमें आप देखोगे तो 8 नंबर 3rd लाइन में लिखा है जी राज, गौरव राज, और गौरव भैया हमारी लैब के ही हमारे जस्ट सीनियर थे। जब मैं अपनी थीसिस को कंपाइल कर रहा था उस समय गौरव राज को पीडीएफ मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट क्लाइड से। 2008 से वो वहीं पर है और नाउ ही इज इन जर्मनी, और वहाँ के एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ वो इसमें काम कर रहे हैं। एक नेचर का पेपर है जो अभी 2 हफ्ते पहले ही आया है। तो दिस इज वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट स्टडी आप कह सकते हो। अनदर वेरी नाइस, कॉम्पैक्टनेस के ऊपर है। इसमें जो जीवी रेंज की वेलोसिटी है, एनर्जी है, उसको भी अटेन किया गया, और साथ ही साथ जो पूरे ओवरऑल जो साइज था उस पूरे स्ट्रक्चर का, वो काफी ज्यादा मिनिमाइज था। तो अभी तक जो सबसे मिनिमम साइज का एक्सेलरेटर जो हम लोगों ने रियलाइज किया एक्सपेरिमेंटली, उसको रिपोर्ट किया गया है इस स्टडी में। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो इस बात को दिखा रहे हैं कि वी आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समय के साथ साथ रोज दर रोज हम लोग उस कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, और हर कदम जो हम इस कॉम्पैक्ट लेजर कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम असल में इस ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट, प्रोटॉन थेरेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो होपफुली भविष्य में ऐसी भी और भी खोजें होंगी जिसको कि इस फील्ड में और भी लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। एंड दिस इज अ वेरी फास्ट गोइंग ब्रांच। हालांकि इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैं जो हम अभी अफोर्ड करना शायद उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली इसको अभी भी काफी अच्छे तरीके से लोग देख रहे हैं। तो इंडिया में जो भी रिसर्च हो रही है मोस्टली वो थ्योरेटिकल हो रही है, जो इन एक्सेलरेटर्स के पैरामीटर को स्टडी करने में, उनको ट्यून करने में स्टडी के तरफ फोकस्ड है। और ऑल ओवर वर्ल्ड पे तो कुछ ऐसे बहुत अच्छे संस्थान हैं, कुछ ऐसी बहुत अच्छी जगहें हैं जहां इसको काफी अच्छे से लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस।
Thank you so much, sir, for this very compact session. And in that session, you talked about modern particle accelerators and all the fine detail to the what is currently happening in the field. I think the students who have joined us have must learn a lot from this talk, and they must be having some questions regarding it. So this session is open for question and answer session. So anybody who has any question, anything you can ask related to the topic we are discussing about. So any students have any question, please. Hello, good afternoon, sir. Yeah, your voice Sir, is good very afternoon. low. Uh, Yeah, Ratnesh, please ask your question. सर सर जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की बात करी सर हमने, तो उसमें सर ये कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करते हैं आप, मतलब ऐसे मतलब कैसे पार्टिकल्स को कोलिजन मतलब उसमें कराने की कोशिश कर रहे हैं? रत्नेश, ऐसा ये जो इसको बेसिकली ये पूरी स्टडी प्रोटॉन कोलिजन की है, और वो उस एनर्जी को क्रिएट करना चाह रहे हैं एक्सीलरेटर के उस चैम्बर में जहां कोलिजन करके, जो कि जिस ऑर्डर की एनर्जी यूनिवर्स की शुरुआत में थी उसका एक प्रोटोटाइप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो ये तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर होने वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में से सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। उस कोलिजन के थ्रू जो भी एनर्जी क्रिएट होगी उसमें हम हिग्स बोसॉन को के ट्रेसेस देखना चाहते थे। X17 जो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रपोज पार्टिकल है, उसके बारे में देखना चाहते थे। तो इसमें हम जनरली इन सब एटॉमिक पार्टिकल के कोलाइड करके जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी के द्वारा जो सब स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं उनको देख। I hope you got the answer, Ratnesh. ओके सर, ओके सर। सर एक जगह सर मैंने कहीं पढ़ा था, बट वो ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया था। वो सुपर सिमेट्री के बारे में कुछ था, इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ ये फाइंड हुआ था कुछ सुपर सिमेट्री, सर वो कुछ। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि हैड्रॉन कोलाइडर के दौरान बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं जो कि सिर्फ थ्योरी हैं, उनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो ऐसी थ्योरीज को एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करने के लिए भी इस हैड्रॉन कोलाइडर में प्रोसेस को लोग कर रहे हैं ताकि इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिल सके। तो शायद आपने वैसा ही कुछ सिमेट्री ब्रेकिंग या सिमेट्री से जुड़ी हुई किसी थ्योरी के बारे में आर्टिकल पढ़ा होगा जिसको वैलिडेट करना चाह रहे हैं हैड्रॉन कोलाइडर के द्वारा। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, anyone else? Any students? Any student has any question? Basically, we are expecting questions from our final year students who are just at a course on nuclear physics. So maybe we were expecting something. So anyone? Okay. Okay, sir. RG, Yes, sir. again you have kept us absolutely amazed by seeing that such a complex ideas as bring about. You have presented it and still students are not getting prompted to ask question is very bemusing to me. But I have written down few things that I would like to share with you. I'm not in a position to say that it is my comment, but when you are showing that X-ray interaction and then proton interaction,
the energy transference graph, na? Yes, sir. And then through that you have beautifully explained this targeted therapy kind of a thing, that electromagnetic radiation when interacts with the material, it gets absorbed in a very different way. Interaction of electromagnetic interaction with the material, with the matter. Yes. Whereas when particle interacts with the material, they will give us a different scenario altogether. And to all of our students, they might have studied those things in their classrooms, also in their studies also, that towards the end maximum absorption takes place, and the whole idea of your this plasma playing a very vital role in particle accelerator is probably bringing the more particle at one place. And if we can target those things into these medical problems, such as cancer, then probably we can deposit more energy to the cancer tumors and destroy them at that particular position itself, rather than harming the good tissues or good Healthy tissues. healthy tissues. Yes, So sir. that was a fantastically explained from your side, and I am really very thrilled. And still, I am my hairs are raised, because sometimes when you know something which you understand, but you don't have the words, you don't have the correct way of suggesting it, and suddenly when you see those things coming from somebody else, it enthralls you like anything. So this is one thing that we should study more on, that part of interaction of the material, interaction of the radiation, because in higher physics, when we say radiation, we don't mean only electromagnetic radiation. We talk particle also as a radiation, isn't it? So Yes. in that sense, it is a fantastic situation. Further, what I was very amused to see was this the idea of this bringing a lot more charged particle at one place. We have studied something of that type in when we were studying that Cooper pair kind of a thing, na? Yes, sir. There again the charges are coming together, although they are defying some common sense, that why electron are forming pair when they are electrostatically repulsive. Here you are making a bunch of protons which are repelling by its own nature, but still they are coming together because it is coming together because of some other wake-like phenomenon. That was absolutely fantastic idea, and to be very honest, I was less aware of all these developments that have taken place. It's happened in the field of science that you try to become a little bit more myopic the further you go, because then आप धीरे धीरे अपने आप को एक एरिया में ही कन्फाइंड कर लेते हैं. वो डिजास्टरस है, डेंजरस है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ओपन अप होना भी थोड़ा मुश्किल है हम सभी के लिए. बट वो आइडिया भी मुझे बहुत ही थ्रॉलिंग और बहुत ही एक्साइटिंग लगा, जिसमें कि हम उस प्रोटॉन को बंच के फॉर्म में ला पाए. स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही एक एक्साइटिंग और बहुत ही एक उस तरीके का आइडिया होना चाहिए, और उस पर वो लोग कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ों के बनने के पीछे और इसके एनालॉजिकल सिचुएशंस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ये तो आपने जो हम लोग को बताया है, ये फ्रंट एंड रिसर्च है. ये तो अभी जो रिसर्च कंटेम्प्रेरी टाइम में साइंस इसको परस्यू कर रहा है, आपने वो बताया है. किताब में तो इसको आने में अभी बहुत समय लगेगा, बट इवन देन we find some signature of these ideas into different domains of physics that we have already studied at undergrad level. So my request to all my students is that kindly start finding some correlations
some sort of correlation between what front end research is doing and what we are studying, what you have studied at your undergrad level. Even that will help you a lot in developing your ideas. So this is my one comment. One thing that I would like to I would like to ask you to explain to my students again, Yes, sir. because in one of the slides you have written that 1 TeV is equivalent to a mosquito flying. So kindly give them some idea that what type of energy, when we talk about TeV, then we assume that it is something just like some time back we were having that idea that Hadron Collider will consume all the universe in itself. So all those things have come up at that time. But this 1 TeV is equivalent to a mosquito flying. Can you shed some light on that so that my students will get an idea that how these energies, MeV, million, when we say million, trillion, we think that it is a huge amount of something. But how does it come? So can if you shed some light on that, please. Yeah, thank you, sir. Thank you for your comments. And this energy scenario जो है elementary particles के केस में, that is very interesting. नॉर्मली हम जब एनर्जीज को देखते हैं तो हम अपने रोजमर्रा की आम जीवन की जो एनर्जीज हैं उनके साथ हमारा वो एक रिलेशन, एक अनुभव रहता है. जैसे अगर हम कहें कि 1 जूल एनर्जी कितनी होती होगी, एक एस्टिमेट एक आम जीवन में 1 जूल एनर्जी कितनी है, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 10 to power 6 जूल एनर्जी एक स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए खाने के रूप में, उसको मतलब मिलती रहे. माइकल फेल्प्स जो कि एक चैंपियन रहे हैं ओलंपिक में, उनका जो एनर्जी कंजम्पशन था पर डे का वो 10 to power 7 जूल था, 10 टाइम मोर देन अ नॉर्मल पर्सन. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है वो 10 to power -19 जूल होती है. तो उसका जब हम ट्रिलियन टाइम करते हैं, उस -16 का ट्रिलियन टाइम करते हैं, तो इस ट्रिलियन टाइम करने में जो ये सारा अरेंजमेंट है वो पूरा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का अरेंज किया गया है, जहां सुपर कंडक्टर से लेकर के वो सारा कुछ अरेंज किया गया है. तो आप ये समझ लीजिए कि 10 to power 12 -19 से उसको -7 तक लाने में, एनर्जी को जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है -19 और उसको -7 तक लाने में ये पूरा अरेंजमेंट किया गया है. उसका एक आइडिया लगाने के लिए कि 1 TeV एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती होगी तो उससे वो क्या कर सकता है, तो उससे वो टकरा करके एक मिनिएचर बिग बैंग जैसा क्रिएट कर सकता है. ऑल्दो वो जो बिग बैंग होने के बाद ब्लैक होल क्रिएट होता है वो तुरंत ही ऑलमोस्ट बहुत ही कम समय में हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू डिसअपियर हो जाता है. लेकिन आम जीवन में अगर हम सोचें कि 1 TeV एनर्जी लेकर के क्या किया जा सकता है, तो 1 TeV एनर्जी से एक मच्छर उड़ सकता है, एक मच्छर की उड़ने की जितनी एनर्जी चाहिए. बट हमें फिर सोचना है कि सारी स्केल हम एलिमेंट्री पार्टिकल पे कह रहे हैं. जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल में हमने कहा किसी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन 10 to power -3 सेकंड तक रुक सकता है और उससे पूरी लेजर बन गई. हमारे लिए 10 to power -3 इज जस्ट अ मिलीमीटर, जो कि हम शायद अपनी घड़ियों से रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते. This is a very fascinating field कि how energy situations elementary particle पर और हमारे आम जीवन पर जो नॉन क्वांटम ऑब्जेक्ट है उन पे किस तरह से वो शिफ्ट होता है. मैं really a very aptly explained situation. उसमें बस उसी तरीके की सिचुएशन है कि वहाँ जो दुनिया चल रही है वो इतनी मास में इतनी कम है कि वहाँ एनर्जी का वैल्यू ही डिफरेंट हो जा रहा है. तो हमेशा इसी खेल को खेलते रहते हैं कि क्या हम सोचते हैं और क्या हम कर पाते हैं. उसके बीच में सोचना हमेशा बहुत आगे का रहता है और कर पाने की क्षमताएं थोड़ी कम, लिमिटेशंस हैं जी, लिमिटेशंस रहती हैं. बिल्कुल सही है. और जैसे आपने भी अभी थोड़ा सा कहा और आरजी ने भी उसके बारे में कहा था, रत्नेश वाज आस्किंग दैट देयर इज some idea of supersymmetry and something of that type. So those models are really very exciting and very challenging, but they all are
You see, science at that level is more of an speculations. जी So everybody is speculating. हर व्यक्ति अपने अपने साइड से स्पेकुलेट कर रहा है और धीरे धीरे उसके जैसे जैसे एविडेंस आते जाएंगे साइंस उनमें से उन आइडियाज को लेकर के आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सर, इस बिल्कुल। तरीके की चीजों को अलग अलग लोगों ने स्पेकुलेट कर रखा है। जी So my comment on these things to all my students are that साइंस की जो डेफिनेटनेस है ना वो क्लासरूम और क्लास टेक्स्ट बुक तक है। रिसर्च लेवल पर साइंस स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव है सर। आप अभी आप क्या कहते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। रिसर्च लेवल पर ये पूरा मतलब मैं मेरे जितने भी कुलीग यहाँ हैं जिन्होंने हार्डकोर रिसर्च किया है, ललित तो खैर उसके एक दूसरे तरीके के भुक्तभोगी हैं है ना। उस स्पेकुलेशन का जो अल्टीमेट डार्कर साइड है वो उसके मेंबर रहे हैं इतने साल तक। स्पेकुलेशन वो जो फ्रंट एंड रिसर्च है वो स्पेकुलेटिव है। टेक्स्ट बुक पे वो चीजें आती हैं जो डिफाइन हो जाती हैं, जिसकी चीजें सेटल कर जाती हैं। बट एट दैट लेवल शोभित, ललित, आरजी, माइसेल्फ, everybody whosoever is doing that type of work, they know that yes, it is purely speculative, and it is whose speculation works beautifully. So उसी मामले में Einstein was sometime called, he is a very lucky that all his speculation comes true whenever tested in terms of long cherished वो था। मुझे लगता है ऑनलाइन शोभित हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट के एंगल से सोची थी वो वहां तो नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ हो जा रही है। तो हम लोग इसको एक बहुत ही रेगुलर फीचर के रूप में भी देख सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन मीटिंग्स कैन बी डन इन सच अ फैशन, और उसमें भी अगर स्पीकर्स आरजी टाइप के हों तो नथिंग लाइक दैट, इट वुड बी अ वेरी फ्रूटफुल सेशंस। So this is all about my side. If anybody has to make any comment, one can comment. Otherwise, we will close this session. Okay, sir. So it seems Thank there you. is not one question, and we can stop it. We can conclude this session now, and I think we had a very great starting. We will continue with this hope. We will meet again. We'll announce our next speaker for next webinar. We'll meet soon. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. Thanks all.